پشاور کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ یہ شہر زمانہ قدیم سے بر صغیر پر حملہ آوروں کی گزرگاہ رہا۔ محمد بن قاسم کے علاوہ بر صغیر پر جو بھی حملہ آور ہوا وہ اس شہر کو رونتا ہوا آگے گیا۔ اس شہر کے محل وقوع کے اعتبار سے پشاور کی ہر حملہ آور نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پشاور اس اعتبار سے بر صغیر کی داخلہ گزرگاہ رہا اور ہر حملہ آور نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس شہر کو ملیہ میٹ کیا، لیکن ہر دفعہ اس شہر کے باسیوں نے پشاور کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تاریخ پشاور اس بات کی گواہ ہے کہ اس شہر کی بار بار تعمیر ہونے کی وجہ سے یہاں ہمہ وقت روزگار کے مواقع دستیاب رہتے تھے۔ شہر میں جاری اس تعمیراتی سلسلے کے باعث یہاں ہر شعبے کے پیشہ ور افراد کے لیے بڑی کشش ہوا کرتی تھی۔ آس پاس کے شہروں، قصبوں بلکہ پڑوسی ممالک کے پیشہ ور افراد یہاں آ کر اپنا روزگار حاصل کرتے تھے۔ تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیشہ وروں کی شہر میں بہتات کی وجہ سے اس شہر کو پیشہ وروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ پیشہ ور دھیرے دھیرے پشاور بن گیا۔ پشاور کے نام کے حوالے سے یہ بات بڑی حد تک درست معلوم ہوتی ہے۔ اس دعوے کو اگر مقامی ہنرمندوں کے پس منظر میں پرکھا جائے تو پیشہ ور والا تاثر قوی تر ہو جاتا ہے۔ پشاور میں بڑے بڑے کاریگر وسطی ایشیائی ریاستوں تک سے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان بیرونی ہنرمندوں نے اپنا اپنا ہنر پشاور میں پیش کر کے پشاوریوں کے دل جیت لیے۔ ان بیرونی ہنرمندوں میں تانبے کے برتن بنانے والے کاریگر سمرقند و بخارا سے آئے اور یہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پشاور میں سمرقند و بخارا کے علاوہ خواجگان قوم کے تانبے کے برتن بنانے والے کاریگر بھی آ کر آباد ہوئے۔ یہ ہنرمند یہاں کب آ کر آباد ہوئے اس بارے میں تاریخ کے مستند حوالے تو موجود نہیں، البتہ زیادہ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ مغلیہ دور سے پہلے یہ کاریگر یہاں آباد ہوئے۔ ان میں سے جن کاریگروں کے کام کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا وہ تانبے کے برتنوں پر نقش و نگار کرنے والے کاریگر تھے۔ ان دنوں چونکہ پشاور میں بڑا تجارتی مرکز قصہ خانی بازار تھا، اس لیے ان کاریگروں نے ابتدا میں کوشش کی کہ ان کو مرکزی بازار میں کوئی دکان مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو عین جس جگہ قصہ خانی بازار ختم ہوتا تھا وہاں ایک پتلی سی گلی میں ان ہنرمندوں کو کام کرنے کی جگہ میسر آ گئی۔ یہ گلی اس مقام سے شروع ہوتی ہے جہاں قصہ خانی بازار ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں قصہ خوانی بازار میں۔ میں آپ کو یہ بتا چلوں، قصہ خوانی بازار اس وجہ سے مشہور تھا کیونکہ یہاں آل اوور سب کانٹیننٹ لوگ آ کے، جو یہاں بزنس مین تھے، وہ یہاں آ کے اپنے قصے ڈسکس کرتے تھے، اپنی جرنی کو ڈسکس کرتے تھے اور قہوہ پیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس بازار کا نام قصہ خوانی ڈلا۔ اس بازار میں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر طرح کی اشیاء اس وقت کے دور میں آپ کو ملتی تھی۔ اس وقت کے دور میں قصہ خوانی بازار ہی مشہور تھا۔ اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہم جس جگہ موجود ہیں اسے ایک بازار مسگراہ کہتے ہیں۔ مس ہم براس کو کہتے ہیں یا تانبے کو کہتے ہیں ہند کو میں، اور مسگراہ کے نام سے یہ مشہور تھا کیونکہ یہاں براس کا کام ہوتا تھا، اس کے اشیاء، اس کے برتن، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بنتے۔ دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے، جب پوری دنیا نے اپنے ٹریڈیشنز کو چھوڑا تو وہ قومیں پستی کی طرف آتی گئی ہیں۔ ہم نے جب اپنے برتنوں کو استعمال کرنا چھوڑا، ان تانبے کے برتنوں کو، ہم گلاس کی طرف چلے گئے، پلاسٹک کی طرف چلے گئے، اسٹیل کی طرف چلے گئے، تو بیماریوں نے ہمیں پکڑا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ برتن مہنگے تو ہیں، ان کو بنانے میں ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن یہ آپ کو ہر بیماری سے پاک رکھتے ہیں۔ یہاں برسبیل تذکرہ یہ تاریخی حیثیت بھی پیش ہے کہ افغانی
वस्त एशिया से बर सग़ीर में दाखिल होते तो पेशावर में मुख्तसर क़याम करते, जहाँ किस्सा खानी बाज़ार उनका पसंदीदा मकाम था। किस्सा गोओं के बाज़ार से बाहर जाने वाली गलियाँ भी अपने तर्ज तामीर में यकसा तौर पर शानदार थीं। इन गलियों में मुख्तलिफ कारोबार होते, जिनमें रेशम, मसाला जात, तांबा, चांदी, लोहा और खुश्क मेवाजात शामिल हैं। ये गलियां अक्सर व बेशतर अपनी ख़ास महारतों और यहाँ पर बनने वाले फ़नकारों की मुनासबत से मशहूर हुईं। पेशावर के देरीना शहरों से सीना बसीना जो इल्म मिलता है, उसके तहत इन हुनरमंदों का हुनर इस कदर आला पाए का था कि चाहे वो कहीं भी बैठ जाते तो गाहक उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पहुंच जाते थे, और रफ्ता रफ्ता दूसरे ममालिक समेत मकामी कारीगर भी इस बाज़ार मिसगरां में मुंतकिल हो गए। इस गली को अब भी बाज़ार मिसगरां ही कहा जाता है, लेकिन अब ना तो वहाँ मिस यानी तांबा है और ना ही मिस गर। जी, तांबे के शीटों से ये चीज़ें बनाई जाती है अक्सर, यानी ये चीज़ें लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर आपने देखा हो तो शादियों में ये लोग जहेज़ के तौर पे दिया करते थे। इसका इस्तेमाल अब क्यों कम हो गया है? क्योंकि पहले तो ये एक्सपोर्ट भी होती थी बैरून मुल्क, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया, जबकि ये एक ही शॉप रह गई है अब। इसका इस्तेमाल इस वजह से कम हुआ है कि नई नई चीज़ें आ गई है, प्लास्टिक, शीशा, सिल्वर, स्टील, इन चीज़ों से इनका इस्तेमाल कम हो गया है। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें वक्त के साथ साथ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें ज़वाल आ रहा है? क्या इसको कोई ख़रीदता है? जी बिल्कुल, बीच में तकरीबन ये जब से 2000 और 2010 के दरमियान जो मुल्की हालात थे, उसकी वजह से इसकी सेल में और जो उसकी पैदावार थी उसमें कमी आई है। लेकिन अब डॉक्टर्स जो हैं ये आजकल लोगों को कह रहे हैं कि तांबे में पानी पिएं या इसमें खाना बनाएं, मैदे के लिए अच्छा है। और फिर जो तांबा तो एक धात है, कुदरती धात है, और इसमें फिर जब कलाई हो जाती है तो ये एक और भी मैदे के लिए जो है ना मुफीद होता है। सर, तांबे के साथ साथ आपके पास यहाँ स्टील के भी बर्तन हैं और मटेरियल के भी बर्तन हैं, तो क्या वजह, आप प्योरली क्यों तांबे का नहीं काम कर रहे? तो ये तो हालात की वजह से ना। अब मिसाल के तौर पे पहले एक तांबे का जो पतीला था वो अगर 1000 में आता था, तो अब वही पतीला 3000 में, 4000 में आता है। तो ये स्टील का जो पतीला है अब मिसाल के तौर पे, या सिल्वर का जो है वो 1200, 1300 या 2000 में आ जाता है। इसी तरह अगर आप बड़े साइज़ का पतीला लें वो 10,000 रुपये का है। तो इसलिए लोगों की कुव्वत से जो है ना वो बाहर है, कुव्वत ख़रीद से बाहर है। ये ज़्यादा दूर और देर की बात नहीं है कि पेशावर की मकामी आबादी चूँकि घरों में तांबे के बर्तन इस्तेमाल करती थी, इसलिए ये छोटा सा बाज़ार तांबे के बर्तनों का बड़ा तिजारती मरकज़ था। तांबे के बर्तनों की मकामी तौर पर भी बहुत मांग थी, जबकि बैरूनी हुनरमंदों के नक्काशी के फ़न ने इन बर्तनों को मज़ीद दीदा ज़ेब बना डाला। बर्तनों की इस खूबसूरती ने पेशावर आने वाले सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ये वो वक्त था कि जब सयाह और ताजर मिसगरां के हुनरमंदों के हाथों से बने पीतल और तांबे के ज़रूफ खरीदने के लिए यहाँ का रुख किया करते थे। तांबे के इन बर्तनों की बहुत ज़्यादा मांग थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी शादी का जहेज़ तांबे के बर्तन के मुकम्मल सेट के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता था, और लड़की के जहेज़ में तांबे के ज़रूफ को बड़ी कदर से देखा जाता था। जहेज़ में तो तांबा महंगा होने की वजह से ये बर्तन गायब हो गए, लेकिन ये मुनक्किश ज़रूफ डेकोरेशन पीस बन गए और घर के आम इस्तेमाल के बजाय ड्राइंग रूम की जीनत बन गए। तांबे के ज़रूफ की डेकोरेशन बनने से इसके ख़रीदार भी बदल गए। तांबे के इन मुनक्किश बर्तनों के बड़े कदरदान गैर मुल्की बन गए।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ तांबे की अशिया बनाने वाले कारीगर के पास। यहाँ तांबे को बनाने, तांबे के बर्तन बनाने के साथ साथ यहाँ और जो इसके डेकोरेशन पीसेज है उसके साथ इसको ये पॉलिश भी करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त भी वो एक अशिया को पॉलिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हर एक चीज़ को हम लोगों ने यहाँ ज़वाल की तरफ अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को हम ले गए हैं, लेकिन चूँकि ये हमारी सकाफ़त के साथ मौजूद है इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वाले बिज़नेस को या तांबे के बर्तनों को और अशिया को ज़्यादा फ़रोग़ दें। लेकिन हमने अपनी सकाफ़त को पीछे छोड़ के हम और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। हमने ग्लास को, प्लास्टिक को, जो कि प्लास्टिक आप खुद जानते हैं कि बीमारियों का गढ़ है, उनको हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिर्फ ये कि ये ब्रास के जो बर्तन हैं या ये तांबे के जो बर्तन हैं ये चंद एक रुपये महंगे हैं उनसे। जब हमने अपनी सकाफ़त को पीछे छोड़ा तो हम उसी वक्त ज़वाल में जाते हैं। अभी तो हमारा इधर बहुत बड़ा फैक्ट्री थी, कारखाना था। अभी ये हालत ये हो गई कि अभी बैठक में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो ये काम ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा है, समझ गए ना, बस तकरीबन ख़त्म ही समझे। सर, इसके ख़त्म होने की वजह क्या है? इसकी वजह तो ये है कि ये स्टील के बर्तन निकल आए और प्लास्टिक के बर्तन निकल आए, वो सस्ते हैं, ये महंगे हैं। अभी ये चादर जो है 2,000 रुपये किलो है। हमारी चीज़ जो है वो बनती है तो वो हज़ारों में बिकती है। अभी कि अगर किसाखानी में एक गिलास ख़रीदे तो वो उसका 2,000 रुपये प्राइस है, और जो प्लास्टिक का आदमी ख़रीदता है तो वो 10-15 रुपये में मिलता है, तो फिर इसलिए लोग ये नहीं ख़रीद सकते। इसकी दूसरी वजह ये है कि ये साल के बाद ये कलई करना पड़ता है, तो अब कलई इतनी महंगी है कि 4-5 हज़ार रुपये किलो कलई है, तो वो कलई भी लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये काम ख़त्म हो रहा है। फिर भी आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ काम हो रहा है, आप बना भी रहे हैं, इसकी पॉलिशिंग वगैरह भी आप करते होंगे, तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये तो अभी जो हम बना रहे हैं डेकोरेशन पीस है, ये तो इधर कोई नहीं ख़रीद सकता है, इतने महंगे हैं ना कि हद से ज़्यादा महंगे हैं। ये चाइना जाते हैं, ईरान जाते हैं, दुबई जाते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं। मैं इधर डेकोरेशन पीस बनाता हूँ तांबे का, उस पर अपना काम करता हूँ नक्श का। मेरे साथ पहले 15 शागिर्द थे, अभी 2 रह गए कि ये काम ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि ये छोड़ते नहीं है एयरपोर्ट पे, तो ये ख़त्म हो गई, कोई ख़रीदार नहीं आती पेशावर में, तो इसकी वजह से इसका काम बहुत ख़राब हो गया है। तो हमें हुकूमत इस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे कि अच्छा हो जाए ये काम वापस। और अब जो शागिर्द हमारे पास थे वो कारखानों में काम करते, एक जगह पे करते, ये काम छोड़ दिया उसने, अभी नहीं सीखते ये काम। सर, इस काम को करने के लिए आप ये जो नक्श का काम करते हैं, इंग्रेव करते हैं आप ये तांबे के अंदर, तो इसकी क्या डिमांड है? आप किन को ये आगे फिर बेचते हैं? ये हम दुबई में बेचते हैं, लंदन में बेचते हैं, ख़रीदार भी आते हैं उधर से, जर्मनी से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन अभी नहीं आते क्योंकि इधर छोड़ते नहीं है, ख़रीदार नहीं है ना कि यार हम इधर ख़रीदते हैं और एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ते हैं ना। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तांबा बनाने की फ़ैक्ट्री में, और पूरे पेशावर में ये एक ही फैक्ट्री अब रह गई है।
यहाँ ये लोग पुराने नवादरात को पॉलिश कर रहे हैं और न्यू भी बना रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ समावार भी मौजूद है, यहाँ हमाम भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ कहवे के लिए केतलियाँ, बाल्टियाँ वगैरह वगैरह, थाल हो गए आपके पास और चम्मच हो गए, सब कुछ मौजूद है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पानदान, आपके दिया जलाने के लिए ग्लास और सुराही वगैरह, ये सब कुछ मौजूद है। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि तांबे के बर्तन से बीमारियां तो दूर होती हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंसिव भी है और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते थे एक ज़माने में, लेकिन चूंकि इसकी डिमांड कम हो गई तो इस वजह से ये एक ही फैक्ट्री पूरे पेशावर में रह गई है। हम इसके ओनर से जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि ये फैक्ट्री में सिर्फ यही एक फैक्ट्री रह गई है पेशावर में, यहाँ इतना काम नहीं हो रहा, लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मज़ीद, और इन चीज़ों पर आप देखें तो इतनी खूबसूरत बनाई हुई चीज़ों को ये घर की रौनक या जीनत क्यों नहीं बन रही? हमारी ये 4th जनरेशन है जो तांबे के काम से या बर्तन साजी के काम से मुंसलिक हैं। जितनी हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी या जो टूरिस्ट आते थे या जो वेंडर्स आते थे वो ज़्यादा सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान के रास्ते आते थे एज अ कन्वाई की सूरत में, और यहाँ से माल की ख़रीदारी करके हर किस्म की सामान की ख़रीदारी करके आगे वो सेंट्रल एशियन रियासतों में चले जाते थे, पाकिस्तान से ईरान वगैरह होके आगे। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एक तो मटेरियल काफ़ी महंगे हो चुके हैं, कॉपर की डिमांड पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा है, और मटेरियल जो है यहाँ पे जो है पाकिस्तान में मटेरियल काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी डिमांड कम है। लेकिन ये है कि पूरी वर्ल्ड से इस वक्त जो है हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के जो है वो ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर जो पेशावर के जो या हमारे पाकिस्तान में जो लोग इस्तेमाल करते थे, हर से गरीब घराने में भी एक हांडी, एक खाने का चम्मच, प्लेटें वगैरह हर चीज़ जो थी वो कॉपर की होती थी। लेकिन इसके मटेरियल की महंगी होने की वजह से अब लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी जो इस्तेमाल है वो पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और इसको प्रीशियस मेटल में इसको अब पिंक गोल्ड के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। सर, हमने देखा है कि पेशावर में वाहिद यही एक फैक्ट्री जहां आप लोग हर तरह का काम कर रहे हैं तांबे का, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हमने जितने लोगों से सुना, इंटरव्यू किया, उनको वो यही कह रहे हैं इसका फ़रोख्त नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो आपने इस काम को क्यों जारी रखा? कि आपके पास इसका कस्टमर है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कस्टमर भी हैं। दूसरा, हम जो काम करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, हम क्वालिटी का काम करते हैं। इस वक्त हमारा जितना भी काम जा रहा है पूरी दुनिया में जा रहा है, ज़्यादातर अमेरिका में। हम यहाँ से डायरेक्ट खुद एक्सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ से कराची हमारे वेंडर्स हैं, हम उनको भिजवा देते हैं, एक्सपोर्ट वो खुद ही करते हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये है कि अगर प्राइस को नीचे लाना है कॉपर की, तो अपने जो हमसाया ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान, उनसे कॉपर की फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मटेरियल भी सस्ता हो जाएगा, डिमांड और भी बढ़ जाएगी। ये ज़रूफ़ जो अब डेकोरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी जल्द या बदेर माजी का किस्सा बन जाएंगे, क्योंकि इसके बनाने वाले ये काम छोड़ चुके हैं। ये असल में ये हमारे दादा परदादा का काम है। ये फैक्ट्री मेरे वालिद ने 1947 में हाजी फजल महमूद ने स्टार्ट की। उस वक्त से लेकर 1988 तक इस काम और इस कारोबार की बहुत उड़ान थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अफ़गान वार, फिर मामलात, महंगाई, इन चीज़, टेररिज्म, इन चीज़ों ने उसको आके फिर इसके ऊपर इसको बहुत, इस कारोबार को, ख़ासकर इस कारोबार को, क्योंकि ये हाथ का काम है ना, इसको बहुत ज़िक पहुँचाई है। तो सर, इस काम को अब क्या लोग उस तरह अहमियत दे रहे हैं? क्या तांबे के बर्तनों को या इससे बनी और अशिया को लोग वो अहमियत दे रहे हैं पहले से ज़्यादा? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो तो इस काम की, इसके बर्तनों की, इसके मायार की एक अपनी शान और शौकत और अहमियत है। सर, करंटली आप इस तांबे के काम को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? क्या आप उससे मुतमईन हैं? इस वक्त मुतमईन नहीं है। इस वक्त माहौल या वो मुख्तसर बात वही आती है, महंगाई, और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, मसलन एलुमिनियम आ गई है, प्लास्टिक आ गई है, बोन मटेरियल का सामान आ गया है, तो उस वजह से इस काम को वो डिस्पोजेबल आइटम जो है ना वो ज़्यादा हैं। मिसगरां बाजार अब माजी की एक परछाई बनकर रह गया है। पीतल और कांसी के दस्तकारों के हालात मायूस कुन हैं। एक वक्त था जब मार्केट में एक वक्त पर 40 से ज़ायद कारीगर
کام کیا کرتے تھے، جو اپنی مصنوعات کی بہت زیادہ طلب کے باعث دن رات مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی اس وقت مزید بڑھ گئی جب پشاور کے بازار مزگراں کے ہنرمندوں کے کام کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے 1958 میں لاہور میں منعقدہ مغربی پاکستان کی دستکاریوں کی نمائش میں تانبے کی بہترین مصنوعات بنانے پر تعریفی سند دی گئی۔ سن 1958 کا یہ سند یافتہ فن اب آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ تعریفی اسناد ہنرمند کا پیٹ نہیں بھرتی، البتہ اس کے کام میں نکھار لاتی ہیں، لیکن نہ تو اب کام والے رہے اور نہ نکھار۔ اس فن کا بھی اللہ ہی حافظ۔ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کو بتا چکے کہ خیبر پختونخوا کا کلچر کتنا رچ ہے، اور خصوصاً پشاور کا یہاں کلچر، یہاں ٹریڈیشن، یہاں بہت بڑے بڑے لوگ آ کے گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے ٹریڈیشن سے دور ہیں، ہمیں ان چیزوں کی امپورٹنس کا نہیں پتہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹائم تھا کہ یہ تانبا عروج پہ تھا، یہی برتن استعمال ہوتے تھے، لیکن چونکہ نئی اشیاء ایجاد ہوئیں، پلاسٹک، گلاس، اسٹیل وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ضرورت یا اس کا استعمال کم ہو گیا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ یہ بڑے بڑے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتی تھی، یہاں سے آ کے فارنرز لے کے جاتے تھے۔ کچھ اس کو ٹیررزم نے افیکٹ کیا، کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے جن کے اندر اویئرنیس ختم ہو گئی، انہوں نے اس بزنس کو افیکٹ کیا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اگر اس کی اکیڈمی کھولی جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس ہنر کو جیتا جاگتا رکھیں، تاکہ جتنے نئے لوگ سیکھیں ان کو پتہ چلے اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کو کیسے رینوویٹ بھی کرتے ہیں، اس کو پالش بھی کرتے ہیں، اس کے ٹانکے وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں اگر حکومت اس پہ زور دے تو یہ پروڈکشن اس کی زیادہ ہو سکتی ہے، ہم اکنامکلی اپنے اس صوبے کو سٹیبل کر سکتے ہیں اس بزنس کے تھرو، اس کی صنعت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔